آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پھل اور سبزیاں رعایتی نرخوں پر ہوں گے اب دستیاب۔ ضلع انتظامیہ ملتان کا عوام کو ریلیف، سستا ریڑھی بازار عوام کو دور کرے گی تکلیف۔ شمس آباد میں سستے ریڑھی بازار کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے محسن ملک سے۔ محسن بتائے گا اس ریڑھی بازار کے بارے میں۔ انتظامیہ ملتان نے بڑا انیشیٹو لیا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ریڑھی بازار قائم کر دیا ہے جہاں پر گورنمنٹ ریٹ پر چیزیں ملیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان نے اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ سب بتائیے گا کیا ڈیٹیل ہے، آگے جا کے بھی مزید بازار بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن تھی کہ ملک کے مختلف حصوں میں پنجاب کے شہروں میں ریڑھی بازار لگائے جائیں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے ملتان میں آج اس کا آغاز کیا ہے، چھوٹے سکیل پہ کیا ہے، اس کو بڑھائیں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہ ملتان میں اور جگہوں پہ بھی لگائیں۔ اس میں ہم نے ریڑھی والے سے کوئی قیمت نہیں لی، ہم نے ملتان کے اندر ایک ایڈیشن کیا کہ ریڑھیوں کو ڈیکوریٹ بھی کیا ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے تاکہ ان کے روزگار میں بھی اضافہ ہو۔ جب خوبصورت ریڑھی کھڑی ہوگی تو نیچرلی گاہک بھی زیادہ آئیں گے اور ایستھیٹکلی بھی اچھا لگے گا۔ جنرلی تو ریڑھیاں جہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو اگلی لک نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم نے اس چیز کو بھی کور کیا ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ گورنمنٹ کے جو نوٹیفائڈ ریٹ ہیں وہاں پہ اس پہ لوگوں کو کھانے پینے کی سبزیاں پھل اس نرخوں پہ ملیں گی۔ مانیٹرنگ ہوگی، اس کا نظام بھی بنایا ہے؟ جی بالکل جی، ہمارے جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں 40 کے قریب ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں، وہ ان کی مانیٹرنگ بھی کریں گے تاکہ یہاں پہ کوئی پرائسز کی انکریز نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، پھل فروٹ سبزی اب گورنمنٹ ریٹس پر ملے گی، بر وقت ریڑھی بازار قائم کر دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان میں رواں مالی سال کے لیے کل 313 ترقیاتی اسکیمیں منظور کی گئی ہیں۔ 215 نئی اسکیموں کی منظوری کے ساتھ ساتھ فنڈز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ شہر میں کون کون سے بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں، اس حوالے سے مزید بات کریں گے طیب صاحب سے۔ جی طیب۔ آج بالکل نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نئے سال کے حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں ضلع ملتان کے اندر جو ڈیفرنٹ میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کی، تو اس میں نشتر 2 ہے، مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل ہے، مختلف شہر کے روڈز بن رہے ہیں، ڈسپوزل اسٹیشن بن رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر کام کی رفتار کیسی چل رہی ہے، فنڈز ہمارے پاس کتنے ہیں؟ اس وقت اسسٹنٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ وکاس بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس اس ٹائم کون کون سے بڑے منصوبے آ رہے ہیں اور منصوبوں کے اندر کام کتنا ہوا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو اے ڈی پی کی 2021-22 کی اسکیمز ہیں وہ ڈسٹرکٹ ملتان کی 313 اسکیمز ہیں، جس میں آن گوئنگ اور نیو اسکیمز دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ 1,13,787 ملین ہے۔ اچھا، اگر ہم آن گوئنگ کی بات کریں تو ہماری ملتان ڈسٹرکٹ کی 83 اسکیمز جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں اور 230 اسکیمز جو ہیں وہ ہماری نیو ہیں، جس میں سے 215 اسکیمز جو ہیں وہ اپرووڈ ہو چکی ہیں، باقی جو ہیں وہ ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ہیں، اپروول کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ اچھا، اگر ہم ڈسٹرکٹ ملتان کے لیے بات کریں کہ ہمارے کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ہمارا جیسے آپ نے بتایا پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی 2 اسکیمز ہیں، جس میں ٹیریٹری کیئر ہاسپٹل نشتر 2 ہے۔ یہ ہمارا جو ہے جی وہ 8,842 ملین کا پروجیکٹ ہے، جس کی کمپلیشن ہوگی 31/10/2022۔ اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ایٹ گلا گڈاؤن ہے، جو کہ ہمارا 2024 تک کا پروجیکٹ ہے۔ ملتان شہر کی یہ بڑی اسکیمز ہیں جو کہ کچھ اس سال مکمل ہو جائیں گی، کچھ 2023 اور 24 کے اندر جا کے مکمل ہوں گی۔ آج اس کے بعد ہم ایک امید کر سکتے ہیں کہ ملتان شہر کا جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک حل ہو جائے گا، کیونکہ 2 بڑے روڈز جو ہیں وہ شہر میں بننے جا رہے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرنٹ میگا پروجیکٹس کی جس میں ہیلتھ کے منصوبے ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے، جس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ دور دراز کے علاقوں سے نشتر ہاسپٹل میں آتے تھے اور نشتر ہسپتال کے اندر ایک شہریوں کا بڑا برڈن دکھائی دیتا تھا، وہ بھی کچھ حد تک کم ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ بہت شکریہ کہ ابھی آپ فورٹ منرو میں میپکو حکام کی نااہلی، بجلی کے بل قبائلیوں کو دینے کے بجائے بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ پر ہی بن جانے ہیں۔ قبائلی عوام بجلی نہ ملنے پر شکوہ گناہ ہے۔ میپکو حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کی وجہ سے بجلی کا میٹر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ مزید بات کریں گے، علی موسیٰ رضا نے میزبان کی ہے۔ علی بتائے گا اس کیس کے حوالے سے۔ جی بالکل، وابدہ اہلکاروں کی نااہلی سامنے آئی ہے کہ وابدہ اہلکاروں کی ذمہ داری کہ وہ بجلی کے بل جو ہیں وہ قبائلی لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بل ادا کر سکیں، مگر جنوبی پنجاب کے سیاسی مقام فورٹ منرو میں یہ صورتحال ہے کہ فورٹ منرو میں وابدہ کی جانب سے بجلی جو ہے بالکل بل اسٹیشن سے سپلائی نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فورٹ منرو میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ وابدہ اہلکار جو ہے بجلی کے بل جو ہے وہ بین الصوبائی کوئٹہ روڈ گھر پر ہی پھینکے، کیونکہ قبائلی لوگوں کا کہنا ہے کہ وابدہ اہلکار اس لیے بل جو ہے روڈ پر پھینکے، ان کو پتہ ہے کہ بجلی جب وہ فراہم ہی نہیں کرے تو وہ بجلی کے بل وہ کس منہ سے ادا کرے۔
बिजली के बारी बिल तो वापदा एहलकारों ने भेज दिए हैं और फेंक दिए हैं, मगर कबायली लोगों का कहना है कि जब बिजली सियासी मकाम वोट मंडल में दी ही नहीं जा रही, तो बिजली के बिल जो है ना वो कहाँ से दिए जा रहे हैं। तो भारी बिल भी अदा किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, मगर वापदा की जानिब से वापदा एहलकार जो है बिजली जो है बंद रखते हैं और बिजली के बिल जो है उनके घरों तक भी नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से उन पर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि वो बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते हैं। जबकि वापदा एहलकारों का कहना है कि बिजली चोरी की वजह से वो बिजली नहीं देते, मगर अरसा दरार से फोर्ड मंडरू जो है बिल्कुल बिजली से महरूम है। वापदा की इंतहाई नाअहली है। कई बार कबायली लोगों ने बैनर सुबह कोयटा रोड खर को बुला रखा कि उनको बिजली फराम की जाए, मगर ये जो बिजली का मसला है मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत से लेकर आज जो पीटी की हुकूमत चल रही है आज तक हल नहीं हो सका। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान से खबर दें, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ट्रांसफर स्टेशन के अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। सीईओ मोहम्मद फारूक चौधरी का ट्रांसफर स्टेशन का दौरा। सीईओ ने कहा है कि ट्रांसफर स्टेशन के अपग्रेडेशन जरूरी है। मजीद उन्होंने कहा कि स्टेशन के इर्द गिर्द 10 फीट ऊंची दीवार तामीर होगी। ट्रांसफर स्टेशन में रोजाना जीरो वेस्ट को यकीनी बनाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार खान का खानेवाल से अटक तबादला। डॉक्टर वकार खान से 4.5 माह की सर्विस में 22 दही मराकज़ का क़याम और 400 रेवेन्यू केसेस का फैसला किया है। मज़ीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताइएगा। अली खान बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खानेवाल गुज़िश्ता 4.5 माह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अब उनको तब्दील कर दिया गया, खानेवाल से अटक उनकी तैनाती कर दी गई है, तो आज खानेवाल से वो 4 छोड़ रहे हैं। तो उनसे मज़ीद हम इस हवाले से बात करेंगे कि 4.5 माह में खानेवाल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किए गए काम के हवाले से बात की जाएगी। जी डॉक्टर साहब, खानेवाल में 4.5 माह के करीब तैनात रहे हैं, रेवेन्यू के हवाले से यहाँ पर किए जाने काम के हवाले से बताइएगा। देखिए जी, मेरा यहाँ पर टेन्योर जो है वो मोर और लेस 4-4.5 माह का है। इसके अंदर वी हैव इंश्योर्ड कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो SMBR साहब के हिदायत के मुताबिक और डी साहब की हिदायत के मुताबिक उनको बिल्कुल इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए। इस सिलसिले में 22 हमने सबसे पहले दही मराकज़ माल इस्टेब्लिश किए। अब अगले 107 दही मराकज़ माल पूरे खानेवाल में इस्टेब्लिश होने के लिए जा रहे हैं। पेंडिंग लिटिगेशन एक बहुत बड़ा इशू था यहाँ पर, उसमें हमने कोशिश की है और तकरीबन 400 केसेस का डिस्पोजल है हमारे पिछले 4 माह में। और इसके अलावा जो रेवेन्यू रिकवरीज़ हैं, तावान, वाटर रेट, इसके अंदर खातिर खा बेहतरी आई है और उस सारे की एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो मैं आपको फिर हैंड ओवर भी कर दूंगा ताकि वो आप डाटा आगे चला सकें। तो सर, खानेवाल में तैनात रहे हैं 4.5 माह, खानेवाल शहर कैसा लगा? यहाँ के लोगों के साथ आपने वक्त गुजारा है, तो खानेवाल के लोग कैसे हैं, इनके बारे में क्या कहें? एक बहुत खूबसूरत शहर जिसके बहुत खूबसूरत लोग, बहुत अच्छे लोग हैं और जिसका ऑफिस का जो स्टाफ है वो बड़ा डिलिजेंट और बड़ा हार्ड वर्किंग मैंने पाया, जो कि बिल्कुल आप डायरेक्शंस फॉलो करके जो मेरे साथ चले हैं। और ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एन एक्सपीरियंस विच आई विल चेरिश फॉर अ लाइफ टाइम। खानेवाल में ड्यूटी सर इंजाम दी है और खानेवाल शहर और खानेवाल के शाह याद रखेंगे। ठीक है नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान से आपको खबर दें, कादिरपुरा पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिम से 1 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। शराब फरोश को गिरफ्तार करके शराब बरामद की गई है। नाकाबंदी के दौरान 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मुल्जिमान आसिफ और इशफाक से 2 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ 1 साल का अदालती डेटा हासिल कर लिया गया है। साल 2021 में अदालतों में बिजली चोरों के खिलाफ 1137 मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं। मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर। जी बिल्कुल, बात करेंगे बिजली चोरों के हवाले से। जब बिजली चोरी पकड़ी जाती है तो उसके बाद अदालतों में जो ट्रायल होते हैं, 1 साल का अदालती जो डाटा है वो हासिल कर लिया गया है। 1137 जो मुकम्मल तौर पर 1 साल के दौरान अदालतों में बिजली चोरों के खिलाफ फैसले सुनाए गए, जिसमें लाखों रुपए के जो है वो जुर्माने भी उनको सुनाए गए। हमारे साथ एडवोकेट सरदार मजहर अब्बास सयाल जो माहर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें बिजली चोरी मुख्तलिफ किस्म की है, अक्सर घरेलू बिजली चोरी है, डोमेस्टिक 462 GA के तहत उस पर FIR होती है। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। डायरेक्ट सप्लाई के थ्रू बिजली चोरी करते हैं, मीटर टेम्परिंग, उस पर 2 साल सज़ा है और जो है ना उस पर 1 मिलियन फ़ाइन है। और इसी तरह मेन लाइन जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है,
संती जो चोरी होती है उस पे जो है ना 3 साल सजा है और 10 मिलियन अप टू 10 मिलियन उस पे फाइन है। हमें कानून के मुताबिक पाकिस्तान के जो खजाने में जो बिलिंग बनती है वो उसको हमें अदायगी करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम मुल्की खजाने को और इदारों को तबाह करें। जी बिल्कुल, इस हवाले से मुल्की रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से बिजली चोरी को रोकना होगा। जो शहरी जो हैं इसमें मुलविस है वो अपना किबला दुरुस्त करें। अदालतों में जुर्माने और सजाओं का जो सिलसिला है वो भी जारी है और मजीद इसमें मजीद जुर्माने के हवाले से भी जो एक सिफारिशात हैं वो और हैं। जी ठीक है महर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गुलजई ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं स्कूल और छुट्टी के औकात कार में ट्रैफिक रश से बचने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी ड्यूटी तैनात कर दी गई है कि हम स्कूल आवर्स में ओपनिंग टाइम भी और छुट्टी के टाइम भी ड्यूटी हमारी होती है, लेकिन हम उसको बढ़ा देंगे। लेकिन कई स्कूल और ऐसे इदारे हैं जो बोसन रोड में आपके सामने, ज़्यादातर इदारे वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वहाँ बच्चे आते हैं, वो छोड़ने भी लेने की, चाहे टाइमिंग्स का हमने फ़र्क रखवाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी 15 से 20 मिनट का डिफरेंस लोग अपनी सहूलत देख के वो आ जाते हैं और उसी तरह पैरेलल पार्किंग्स कर लेते हैं, 3-3 लेन्स में भी गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, एन गेट के सामने खड़ी करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सुनने वालों से कि खुदारा आप अपनी जब बच्चों को लेने आते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल उस गेट के सामने पैरेलल पार्किंग करके उठाएं, आप लाइन में खड़े हों। बच्चा अगर 10 कदम चल लेगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इससे कम से कम और बाकी रोड यूजर्स को मसाइल कम होंगे। साथ में ये भी डिसीजन हुआ कि तमाम स्कूल्स वाले जो हैं वो अपने रोड सेफ्टी के लिए और बच्चों को क्रॉस करवाने के लिए और पार्किंग के लिए अपने वो जो असिस्टेंट्स होते हैं, रोड क्रॉसिंग असिस्टेंट्स या ट्रैफिक असिस्टेंट्स, वो वॉलंटियर अपने स्कूलों और कॉलेजेस देंगे, जो हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। हमने उनको ट्रेनिंग भी दी है, जो उन्होंने हमें नाम बताए, तो वो भी हमें आके असिस्ट करेंगे ताकि वो रोड ब्लॉकेड कम से कम हो सके। जो हाईएस्ट लेवल पे हमारी पंजाब की मीटिंग हुई है तो उसमें ये बात भी डिस्कस हुई है और हम हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं। हमने वार्डन्स की ड्यूटीज़ भी ज़्यादा लगा दी हैं, हम हमारे जो लिफ्टर्स हैं हम वो भी भेज देते हैं, लेकिन हमारी हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट्स ज़रूर होती हैं। अब ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि समटाइम्स हम गाड़ी लिफ्ट करते हैं तो बीच में बंदा बैठा, वो गाड़ी पार करके बीच में वो खुद भी बैठ जाते हैं। अगर हम बंदे समेत लिफ्ट करते हैं वो डेंजरस है भी, सही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अगर कोई फुटेज बन जाती है तो एक पूरे इदारे के खिलाफ एक जो है वो एक राय कायम होना शुरू हो जाती है। उसको कोई नहीं पूछता कि भाई साहब आपने जो 3 लेनों में आके एन स्कूल या कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी है, आप क्यों औरों के लिए रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ये मैकेनिज्म हो जाए, हम एक दूसरे को शर्मिंदा करना शुरू करें और सिर्फ पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को क्रिटिसाइज करने की बजाय हम उन बातों पे भी तवज्जो दें जो हमारे माशरे का, और मैं अगर रोड की बात कर रहा हूँ वहाँ पे रुकावट का और खराबी का। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के वफ्द की एसपी इन्वेस्टिगेशन अहमद फराज के साथ मीटिंग में ताजरों के मसाइल, शहर के अहम मार्केट्स में ट्रैफिक के मसाइल हल करने पर बातचीत की गई है। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। बिल्कुल, डीपी ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में साथ हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ में अंजुमन ताजरान का अब जो है वो अब से कुछ देर कबल एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से जो है मुलाकात कर चुके हैं और इस मीटिंग में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हल किए गए हैं। खासकर मुजफ्फरगढ़ में ताजरों की सिक्योरिटी, शहर में ट्रैफिक जो ब्लॉक रहती है उस पर भी तफसीली एक बातचीत हुई है। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान के शेख आमिर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा क्या क्या मसाइल डिस्कस हुए? जी, आज हमारी डीपीओ मुजफ्फरगढ़ साहब से और डीएसपी एसपी इन्वेस्टिगेशन से हमारी मुलाकात हुई है। हमने शहर में ट्रैफिक के मसाइल के बारे में उन्हें आगाह किया और डीपीओ साहब को मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलिंग जो कि अभी कम हो रही है, हमने मुतालबा किया कि मार्केट्स के अंदर मुहाफिज की गश्त को मौसर और उसको बढ़ाया जाए ताकि शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो सके। अच्छा, ये बताइएगा इसके अलावा ताजरों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, सिक्योरिटी के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात है और किस तरह से यकीन दहानी कराई गई है कि मामला को हल किया जाएगा? जी बिल्कुल, शहर के अंदर पहले मुहाफिज गश्त बहुत ज़्यादा होता था, अब हमने देखा है कि ज़रा उसका गश्त कम हो गया है। हमने डीपीओ साहब से गुजारिश की है कि पुलिस की मौजूदगी से वाक़यात जो हादसात के कमी पेश आ सकती है, लिहाजा उनसे गुजारिश की है कि मेहरबानी करें कि गश्त को मौसर करें ताकि डकैती और चोरी की वारदातों में कमी आ सके। जी बिल्कुल, ट्रैफिक के मसाइल हल करने और सिक्योरिटी के मसाइल पर जो तफसीली बातचीत हुई है और
अंजुमन ताजरान के वक्त की जानिब से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो वो DPO मुजफ्फरगढ़ और SP इन्वेस्टिगेशन को जो बताए गए हैं। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, रहीम यार खान के नौजवान की वतन से मोहब्बत की अमली मिसाल। नौजवान मोहम्मद उमर असलम ने वतन से मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। 12 साल की उम्र में मोहम्मद उमर असलम ने बच्चों के लिए स्कूल बनाया है। उमर असलम ने 500 से ज़्यादा तलबा में एजुकेशनल बॉक्सेस तकसीम किए हैं। उमर असलम ने कौमी और आलमी अवार्ड्स भी जीते हैं। उमर असलम ने 30 से ज़्यादा ममालिक में कौमी परचम भी लहराया है। 30 से ज़्यादा ममालिक में वतन से अमन का पैगाम आम किया है। अपडेट करेंगे आपको कि रहीम यार खान के नौजवान की वतन से मोहब्बत की अमली मिसाल सामने आ चुकी है। मोहम्मद उमर असलम ने वतन से मोहब्बत की आला मिसाल कायम की है। 12 साल की उम्र में मोहम्मद असलम ने बच्चों के लिए स्कूल बनाया है। उमर असलम ने 500 से ज़्यादा तलबा में एजुकेशनल बॉक्सेस भी तकसीम किए हैं। पंजन ट्रैक्टर्स में मिलेट ट्रैक्टर्स के इश्तराक से किसान भाइयों के लिए बड़ा इक़दाम। रहीम यार खान में सालाना ट्रैक्टर फ्री सर्विस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सदीक से। जी आसिम। रहीम यार खान में पंजन ट्रैक्टर्स में मिलेट ट्रैक्टर्स के इश्तराक से किसान भाइयों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि ट्रैक्टर की अच्छा होगा, उसकी देखभाल अच्छी होगी तो वो अच्छी तरह से काम ले सकेंगे। और यहाँ पर फ्री सर्विस का इनकाद किया गया है। डायरेक्टर पंजन ट्रैक्टर्स हसन जमील हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, ये बड़ा कदम है जो आपने किसान भाइयों के लिए उठाया कि फ्री सर्विस का इनकाद किया गया है ट्रैक्टर से, तो इससे किसान भाई किस तरह से इस्तेमाल कर सके, उनको किस तरह तरबियत दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोही टीवी का कि वो हमारी इस जो प्रोग्राम है सालाना, जो हम किसान भाइयों के लिए और अपने जो हमारे ऑथोराइज वर्कशॉप्स हैं उनके जो मैकेनिक हजरात हैं उनके लिए साल में एक दफ़ा हम ये प्रोग्राम यहाँ पे इनकाद करते हैं। इसमें हम अपने किसान भाइयों को ये बताते हैं कि जो हमारे ट्रैक्टर्स की रोज़ाना और माहाना की बुनियाद पे जो देखभाल ज़रूरी है वो जो करनी चाहिए, उसके बारे में हमारे कंपनी के जो हमारे इंजीनियर आए हुए हैं, एरिया मैनेजर आए हुए हैं, असिस्टेंट मैनेजर आए हुए हैं, वो उनके बारे में उनके सवालात का जवाबात देंगे, उनको तरबियत भी देंगे। और जो हमारे ऑथोराइज वर्कशॉप्स वाले दोस्त अहबाब आए हुए हैं उनको हम स्पेशल टूल्स जो कि ट्रैक्टर्स की को चेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में उनको तरबियत दी जाएगी और उनके बारे में आगाही दी जाएगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम किसान भाइयों का जो हमारे इनविटेशन पे यहाँ पे आए हैं, और हमारी ऑथोराइज वर्कशॉप वाले जो उस्ताद लोग हैं वो भी आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। बिल्कुल, तमाम वर्कशॉप से जो ऑथराइज वर्कशॉप के मैकेनिक्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, किसान भाई हुए हैं, उनको तरबियत भी दी जा रही है यहाँ पर कि किस तरह अपने ट्रैक्टर की रोजाना की बिना पर और माहाना देखभाल करनी, और इसके अलावा उनके ट्रैक्टर की मुकम्मल तौर पर फ्री सर्विस भी की जा रही है ताकि उनका ट्रैक्टर बिल्कुल ठीक काम करे और ज़मीनों की काश्त के हवाले से उसको प्रॉपर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जी जी आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। सूरजमुखी के काश्तकार हो जाएं तैयार, जनवरी तक काश्त मुकम्मल करने पर बेहतर होगा फसल का मयार। माहिरीन की मंजूर शुदा 2 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करने की हिदायत सामने आई है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। पंजाब के जो सूरजमुखी के काश्तकार हैं वो होशियार हो जाए, क्योंकि अब जो वक्त है वो इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुल्तान, डेरा गाजी का भावलपुर जो दीगर अजला है उसमें जनवरी का जो 31 जनवरी तक का जो वक्त है खासा अहम होता है, और 15 दिसंबर से ही सूरजमुखी की जो काश्त उसका आगाज़ हो जाता है। लेकिन बारिशों के बाद मौसम इंतहाई मौजूद और मौसम के साथ साथ हालात भी कदरे बेहतर हैं, तो जनूबी पंजाब में काश्तकार जो सूरजमुखी की काश्त करने जा रहे हैं उनको क्या क्या कहते हैं तो इख्तियार करनी चाहिए। महीने रात मौजूद उनसे पूछे, सर क्या कहना चाहेंगे? सूरजमुखी हमारे मुल्क की एक अहम फसल है, और सूरजमुखी के अंदर इसके बीज के अंदर जो खोदनी तेल है आला क्वालिटी का खोदनी तेल इसमें पाया जाता है। हमें हर साल जो है बेशुमार जो है वो हमारे जो अखराजात हैं वो इसमें लगते हैं, हमें जब बाहर से हमें खोदनी तेल मंगवाना पड़ता है। तो मैं काश्तकारों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन काश्तकारों ने गंदम की फसल काश्त नहीं की किसी वजह से, या कुछ ज़मीनें जो है वो उन्होंने बचाई हैं, तो उस पर ज़रूर जो है वो सूरजमुखी की काश्त को जो है वो मुकम्मल करना चाहिए। 31 जनवरी तक जो है वो इसकी काश्त का बेहतरीन टाइम है जनूबी अजला में। दूसरा यह है कि मैं काश्तकारों को ये सिफारिश करूँगा कि 2 किलोग्राम बीज जो है वो फी एकड़ इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसकी बेहतर पैदावार के लिए खेलियों पे जो है वो तरजीहन इसकी काश्त करें। काश्तकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ
جو منظور شدہ بیج ہے سورج مکھی کے وہ استعمال کریں، تاہم جو کھیلیوں کی صورت میں کاشت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہترین پیداوار حاصل کی جا سکے، اور کھیت کی تیاری جو ہے وہ بھی 1 سے 2 روز قبل کر لی جائے۔ تو یہ تمام تو سفارشات ہیں جن پر عمل کر کے کاشتکار جو ہے وہ سورج مکھی کی بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا جو بہترین ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ آنے والے چند روز جو باقی ہیں 15 سے 20 روز، اسی دوران جو کاشتکار ہیں اپنے جنوبی پنجاب کے کاشتکار جو سورج مکھی کی کاشت جو مکمل کر لیں۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ رحیم جان خان میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت کالجز جدت کی طرف گامزن ہے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار بوائز خانپور میں 25 ایڈیشنل کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 36 ملین اور 4 ایسوسیٹ کالجز میں سہولیات کی فراہمی کے لیے 37 ملین کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ مزید بات کریں گے عامر بھٹی سے۔ عامر بتائیے گا۔ جی بالکل، رحیم یار خان میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ضلع کے کالجز تعمیر اور اس کے ساتھ ساتھ جدت کی طرف گامزن ہے۔ اسی حوالے سے اگر بات کی جائے انڈیویجول طور پر تو رحیم یار خان میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج خانپور فار بوائز میں جو ہے 25 نئے ایڈیشنل کلاس رومز بنائے جائیں گے، اور اس حوالے سے 36 ملین کی لاگت کے حوالے سے جو فنڈز ہیں وہ بھی ریلیز کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ایسے ضلع کے کالجز ہیں جس میں مسنگ فیسلٹیز کی فراہمی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خریدنے کے حوالے سے ان کو پورا کرنے کے حوالے سے جو ہے مجموعی طور پہ 37 ملین کی جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر ان کالجز کے حوالے سے نام لیے جائیں تو بوائز کالج فار صادق آباد گورنمنٹ ایسوسیٹ ہے یہ، جس میں جو ہے 10.20 ملین کی لاگت سے جو ہے یہ کام جاری کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار وومن لیاقت پور میں جو ہے 20 ملین کی لاگت سے کام جو ہے سٹارٹ کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار وومن سکھر اڈا میں بھی جو ہے جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو ہے 10.25 ملین کی جو ہے وہ فنڈز جاری کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ کالج فار گرلز منٹھار میں جو ہے 6.3 ملین کی لاگت سے جو ہے ترقیاتی کام جو ہے جاری کیے جائیں گے۔ یہ تمام تر فنڈز ہیں جو مجموعی طور پہ 5 کالجز میں جاری کیے گئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ایڈیشنل کلاس رومز کی کمی ہے، جہاں پہ بچوں کو جو ہے باہر بیٹھنا پڑتا تھا، وہ کلاس نئی میں بیٹھ کے جو ہے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی سہولیات 36 ملین کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سرکاری اسکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم لازم قرار دے دی گئی ہے۔ اسکولوں میں پہلا لیکچر قرآن پاک پہ دیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے، دین کے بارے میں بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ مزید بات کریں گے الشفا آصف سے۔ جی الشفا۔ جی بالکل، سرکاری اسکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے اساتذہ کی ٹریننگ بھی کی گئی تھی کہ کیسے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے اور کون سی جماعت میں کون سا پارہ پڑھایا جائے گا، اور اس کو سلیبس میں بھی شامل کیا جائے گا۔ باقاعدہ بچوں کا ایگزام لیا جائے گا۔ اس وقت میں کلاس میں ہی موجود ہوں جہاں بچوں کو سپارہ پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اساتذہ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ کس طرح یہ بچوں کے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہوگا اور امتحان کیسے لیا جائے گا۔ جی سر بتائیں۔ ہر کلاس کا ایک سلیبس بنایا گیا ہے۔ یہ 6ٹھی کلاس ہے جس میں پہلا اور دوسرا سپارہ سلیبس بنایا گیا ہے، تو ہم ان کو پہلا سپارہ کمپلیٹ کرا چکے ہیں، دوسرا سپارہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کا باقاعدہ امتحان لیا جائے گا گورنمنٹ پالیسی کے تحت، تاکہ یہ ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ یہ دنیا اور دنیاوی دونوں تعلیم سے سرخرو ہو سکیں۔ جی بالکل، بچوں کو قرآن پاک باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت تمام یہاں پہ جو بچے موجود ہیں ان کے ہاتھ میں پارہ ہے، اور باقاعدہ جو اساتذہ ہیں ان کو ایک ایک چیز کا ترجمہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بتائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کو یہ جو سلیبس میں انکلوڈ کیا گیا ہے قرآن پاک، اس کا مقصد یہی ہے کہ بچے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم جو ہے حاصل کر سکیں۔ باقاعدہ ان کا امتحان لیا جائے گا تاکہ بچے جو ہیں دل لگا کر قرآن پاک پڑھیں بھی اور اس کو جی ٹھیک ہے سمجھیں بھی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور اسی کے ساتھ نہیں اسٹوڈیو سے فل وقت